So what we have discussed in the last session, discovery of electron and discovery of proton. So electron and proton both are the subatomic particles present in the atom. Electron was discovered by J.J. Thomson through the experiment named as electric discharge of gases, and proton was discovered by Goldstein through the same experiment which is known as electric discharge of gases. Now, in the properties of electron, what we have discussed, that electrons is a negatively charged particle and proton is a positively charged particle. Electron is the main particle or constituent particle of the cathode rays, and the proton is the constituent particles of anode rays. Cathode rays are negatively charged rays and anode rays are positively charged rays. When we examine the properties of these rays, what the Thomson and Goldstein observed, that these rays are made of, cathode rays are made up from electrons and anode rays are made up from protons. As we compare the proton and electron, the mass of electron is quite lesser than, small than the mass of proton. It will be 2000 times smaller than, lighter than the mass of proton. यानी प्रोटॉन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन के मास का. Now third subatomic particle which present in the atom is neutron. तीसरा जो सबएटॉमिक पार्टिकल जो एटम के अंदर फाइंड होता है या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ न्यूट्रॉन. दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ना तो ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव चार्ज. इट कंटेन अ जीरो चार्ज. क्या चार्ज कंटेन करता है? जीरो चार्ज कंटेन करता है. इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक in 1932 through the experiment in which he bombarded the alpha particles on beryllium nucleus. उसने क्या किया था? जब alpha particles क्या होते हैं? Alpha particles are doubly ionized helium atom. क्या होते हैं? They are doubly ionized helium atom. मतलब पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स. सो when the James Chadwick bombard the alpha particles on the beryllium nucleus, ये आपका beryllium nucleus है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 4 होता है, मास नंबर 9 होता है. हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है मास नंबर. तो जब बेरिलियम पर क्या किया, हीलियम पार्टिकल बेरिलियम पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करी, मींस डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम्स की बॉम्बार्डमेंट करी. व्हाट ही ऑब्टेन कार्बन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज न्यूट्रॉन. तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या बोले गए? न्यूट्रॉन्स. व्हेन ही बॉम्बार्ड डबली आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल्स ऑन द बेरिलियम न्यूक्लियस, he obtained carbon nucleus and neutrons. So these particles are electrically neutral, but their mass is equivalent to the mass of proton. ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन इनका मास जो है वो प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है. क्या है? प्रोटॉन के इक्विवेलेंट. So electrically neutral and the mass of neutron is 1.675 into 10 to the power minus 27 kg. प्रोटॉन का मास होता है 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम है. तो दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन. सो 3 subatomic particles are found in the atom: electron, proton and neutron. Electron are negatively charged particle, proton are positively charged particle, and neutrons are electrically neutral. Proton and neutron are almost same mass, but electron have a lesser mass than the proton and neutron.
Now we'll discuss how these subatomic particles are arranged within the atom. कि ये तीनों subatomic particle किस according atom में arrange होते हैं. तो that arrangement of a subatomic particle within the atom is called structure of an atom. Different, yes, doubly ionized helium atom. That is doubly ionized helium atom. Alpha particles are doubly ionized helium atom. So the arrangement of these subatomic particles within the atom is known as structure of an atom. So different atomic models was proposed by the different scientists. So in which we have discussed three different atomic models. So हमें तीन different atomic models discuss करने हैं. So our next topic is different atomic models. Three models we have discussed here. Thomson atomic model, then Rutherford's atomic model, and third one is Bohr's atomic model. These three models we have discussed in the structure of an atom. Thomson atomic model, Rutherford atomic model, and Bohr's atomic model. So सबसे पहला आता है Thomson atomic model. So Thomson was the scientist which discovered the electron. So he proposed a first model of about the structure of an atom, which is known as Thomson atomic model. So according to the Thomson atomic model, atom is a positively charged sphere. Atom is what? Atom is a positively charged sphere where positive charge is uniformly spread throughout the volume of a sphere, but the negatively charged particles, which are electrons, are embedded like the seeds in a watermelon or a fruits in a pudding. जिस तरीके से वाटरमेलन के रेड पार्ट के अंदर स्मॉलर जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो किस तरीके से एम्बेडेड रहते हैं, या फिर हमारा जो पुडिंग होता है, केक होता है, केक के अंदर चेरी है या अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, वो किस तरीके से केक के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, उसी तरीके से एटम जो है वो क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है. Atom is a uniformly positively charged sphere in which positive charge is uniformly spread throughout its volume, but the negative charge is embedded like a seeds in a watermelon or like a fruits in a pudding. So that's why this model is named as watermelon model or a plum pudding model. क्या बोलते हैं, watermelon model या फिर plum pudding model. तो थॉमसन ने क्या प्रपोज किया कि atom is a positively charged sphere in which positive charge is uniformly spread throughout the volume, but the negative charge is embedded like a seeds. कहीं कहीं जगह पर आपके नेगेटिव चार्जेस हैं इस तरीके से. So that model is known as Thomson atomic model. So what are the advantage or what are the characteristic of this model? So in this model, positive charge and negative charge particles are resides staying in a one region or in a one sphere. So that explain the electrical neutrality of the atom. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक ही रीजन में प्रेजेंट है, तो ये क्या एक्सप्लेन करता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, that it explains the electrical neutrality of the atom, that atom is electrically neutral. ओवरऑल एटम जो होता है ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इट एक्सप्लेन electrical neutrality of the atom. So that is the first model
which proposed by the Thomson about the structure of an atom. But after certain years, when the Rutherford discovered the nucleus, Rutherford was the scientist which discovered the nucleus. So after the discovery of nucleus, Thomson model was discarded. न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद थॉमसन के मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि थॉमसन के मॉडल में न्यूक्लियस जैसा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था. न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन थॉमसन, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम प्रपोज्ड बाय द थॉमसन. जो मॉडल थॉमसन ने प्रपोज किया था एटम के स्ट्रक्चर के लिए, उसके मॉडल के अंदर न्यूक्लियस जैसी कोई भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं थी. तो इस वजह से थॉमसन के मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया. ठीक है. Then we will discuss the next model which is known as Rutherford atomic model. But before discussing the Rutherford atomic model, we discuss the discovery of nucleus. Rutherford was the scientist who discovered the nucleus by performing an experiment named as Rutherford alpha scattering experiment. उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम क्या बोलते हैं, Rutherford alpha scattering experiment. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. Rutherford alpha scattering experiment. That is the name of his experiment through which the Rutherford discovered the nucleus. So, what are the experiment arrangement in the Rutherford alpha scattering experiment? He taking a thin gold foil, एक छोटा सा पतला सा thin gold foil लिया. ये thin gold foil है. Why he taking a gold foil? Because gold is an element whose ductility is maximum. ठीक है, मतलब इसकी डक्टिलिटी और जो मैलिएबिलिटी होती है गोल्ड की, वो सबसे ज्यादा होती है. गोल्ड का सबसे पतला शीट आप फॉर्म कर सकते हैं. गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जो थिकनेस होती है बहुत मिनिमम हो सकती है. यदि आप इफ यू आर टेकिंग 1 मिलीमीटर वायर, आप 1 मिलीमीटर वायर गोल्ड का ले लें तो आप उसको बहुत लंबे तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. उसकी डक्टिलिटी इतनी ज्यादा होती है. मतलब इफ यू आर टेकिंग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो यू कैन मेक अ वायर ऑफ अराउंड 100 मीटर और 200 मीटर. इतना लंबा वायर गोल्ड का आप फॉर्म कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई यू टेकिंग अ गोल्ड फॉइल, बिकॉज दैट इज अ एलिमेंट हुज थिन शीट इज अवेलेबल. इसका थिनेस्ट शीट, यस, क्रॉस नहीं है. दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल. Rutherford alpha scattering experiment. So he taking a thin gold foil and bombard the alpha particles on the thin gold foil through the slit. एक thin gold foil के आगे क्या कर दिया, एक छोटा सा स्लिट रख दिया. स्लिट क्या होती है, एक मेटल शीट है, उस मेटल शीट के सेंटर में होल कर दिया है और यहां उसने क्या कर दिया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लेस कर दिया. ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट बॉम्बार्ड द या emits the alpha particles. ये क्या करता है, it emits the alpha particles. When these alpha particles are emits, they will be when passed through the, देखिए इस तरीके से alpha particles अलग अलग डायरेक्शन में क्या होंगे, emerge out होंगे, और जैसे ही वो इस गोल के थ्रू पास होंगे, they will be incident on a gold foil on a straight line path. They will be incident on a thin gold foil on a in a form of straight line or in the form of ray. किस फॉर्म में वो इंसिडेंट होंगे,
रे के फॉर्म में इंसिडेंट होंगे। रे क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रे। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ स्लिट। ये क्या बोली जाती है? स्लिट। व्हेन द अल्फा पार्टिकल्स आर emitted from the radioactive elements and passing through the slit, they will be incident on a thin gold foil in a straight line path. As they incident on a thin gold foil, alpha particles are scattered in a different direction. So to examine the path of scattered alpha particle, he placed a spherical screen behind the thin gold foil, and that spherical screen is coated with ZNS. ये क्या है? This is called spherical screen and which is coated with ZNS. ZNS कैसा मटेरियल होता है? ZNS मटेरियल है एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। जब भी इस पर क्या होगा, कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वहां इल्यूजन क्रिएट होगा, ब्राइटनेस, लाइट क्रिएट होगी। जैसे आपका क्रैकर्स जैसे स्काई में कैसे ब्लास्ट होते हैं तो इल्यूजन क्रिएट होता है, लाइट क्रिएट होती है, वैसे ही जब कोई पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक करेगा इस स्क्रीन पर तो वहां ब्राइटनेस क्रिएट होगी, तो पता चलेगा कि यहाँ कोई पार्टिकल स्ट्राइक हुआ है। सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट। इन दिस वी टेकिंग अ radioactive element which emerges the alpha particle, which produces the alpha particle. These alpha particles are incident on a thin gold foil through the slit, and to examine the path of scattered alpha particle, he placed a spherical screen just behind to the thin gold foil to examine the path of scattered alpha particle. Scattered का मतलब क्या होता है? Travel in a different directions. तो ये जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होंगे? अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड होने चाहिए। तो उसको उन स्कैटर्ड पार्टिकल्स के पाथ को ऑब्जर्व करने के लिए उसने क्या किया? दैट अरेंजमेंट वाज डन बाय द रुदरफोर्ड। अब एक्चुअली क्या था, जब रुदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उस टाइम तक थॉमसन मॉडल जो था वो अवेलेबल था और वो ट्रू भी था। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, तो इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में सब जगह पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिव पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर स्ट्राइक ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल स्कैटर्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। उसके दिमाग में जो ऑब्जर्वेशन पहले से सेटअप था वो ये था कि भाई ये थिन गोल्ड फॉइल है, ये यदि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल करेक्ट है तो थिन गोल्ड फॉइल का जो एटम होगा उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। वो पॉजिटिव चार्जेस अल्फा पार्टिकल, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उनको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे? अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएंगे। बट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज टोटली डिफरेंट। इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन थे वो क्या थे? टोटली डिफरेंट थे। नाउ व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन observed by the Rutherford? Rutherford observed that most of the alpha particle goes straight without any deviation. So that was the most shocking observation observed by the Rutherford, क्योंकि उसके माइंड सेटअप में क्या था कि सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल वो इंसिडेंट करेगा उसमें से मैक्सिमम स्कैटर्ड हो जाने चाहिए थे। और उसने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए विदाउट एनी डेविएशन। Few of them scattered by 0 to 90 degree and few of them scattered by 90 to 180. And out of 20,000, one particle is deviated by 180 degree. मतलब एक पार्टिकल जो इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री से। So that was the second most shocking observation observed by the Rutherford. तो पाथ कैसा था वो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। द पाथ ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। तो स्कैटर्ड पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी कैसी थी? ये एटम, ठीक है, और एटम के अंदर ये सेंटर में ये जो रीजन है ये न्यूक्लियस बोला गया। तो उसने क्या देखा? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट, few of them scattered by
and out of 20,000 particle, one is deviated by 180 degree. So that is the trajectory of the scattered particles, scattered alpha particles. So on the basis of these observations, what Rutherford conclude that most of the space of an atom is empty. जो उसका जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुए, स्ट्रेटली पास हो गए विदाउट एनी डेविएशन, तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स व्हिच गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, दैट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था रुदरफोर्ड मॉडल का, दैट most of the space of an atom is empty. Second point क्या था, there is a region inside the atom where whole mass of an atom is supposed to be concentrated, and that region is a positively charged region, and that region named as a nucleus. एटम के सेंटर के अंदर, ये एटम है, एटम के सेंटर में एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज रीजन है जहां एटम का सारा मास क्या रहता है, कंसंट्रेट रहता है, और ये रीजन क्या बोला गया, न्यूक्लियस. सो देयर इज अ स्मॉल रीजन इनसाइड द एटम वेयर होल मास ऑफ एन एटम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेट, एंड दैट रीजन इज अ पॉजिटिवली चार्ज रीजन, सो दैट नेम एज न्यूक्लियस. तो सेकंड जो पॉइंट बोला गया, there is a small region inside the atom where whole mass of an atom is supposed to be concentrated, and that region is a positively charged region, and that region is named as nucleus. And the size of nucleus is quite smaller than the size of atom. nucleus की size जो है वो atom की size से भी बहुत छोटी होती है. मतलब ये जो nucleus है, nucleus के अंदर क्या होता है, positively charged particle होते हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन. तो प्रोटॉन किस में फाइंड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. तो रुदरफोर्ड का जो थर्ड पॉइंट था, दैट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स. ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. ये ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. से रिपीट कर रहा हूं रुदरफोर्ड मॉडल के पॉइंट्स को. पहला पॉइंट क्या है, most of the space of an atom is empty, that's why maximum alpha particle goes straight without any deviation. Second point, there is a space inside the atom where whole mass of atom is supposed to be concentrated, and that region is positively charged region, so that region is known as a nucleus. इस रीजन को क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया. ये आपका न्यूक्लियस है. और around this nucleus, electron, negatively charged electrons revolve in the different concentric orbits. इस nucleus, positively charged nucleus के around different concentric circles में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. So that is the model of an atom proposed by the Rutherford. कि सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. इज इट क्लियर, इज एनी डाउट, कंफर्म? नाउ दिस रुदरफोर्ड मॉडल इज रिसेंबल विद द सोलर सिस्टम. न्यूक्लियस, रुदरफोर्ड का ये जो मॉडल है उसको किससे कंपेयर किया गया, द सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में क्या होता है, सेंटर में सन रहता है,
और सेंटर के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली रुदरफोर्ड के मॉडल में क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। So the Thomson-Rutherford atomic model resemble with our solar system. It also explains that atom is electrically neutral because it consists of equal number of protons and equal number of electrons. Rutherford model के हिसाब से number of protons जो होंगे वो न्यूक्लियस में रहेंगे और जितने number of protons होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, number of electrons. यस, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन। तो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या रहेगा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। नाउ थर्ड मॉडल proposed by the Bohr's atomic model, and the Bohr's atomic model is basically the model, और हम क्या बोल सकते हैं, improved model of Rutherford model। वो क्या है, Rutherford model का एक improve वर्जन है। क्या है, improve वर्जन। improve वर्जन कैसे बोल सकते हैं, Rutherford के मॉडल्स में कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो वो ड्रॉबैक जो है बेसिकली एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, that was identify the drawback in the Rutherford model। ठीक है, वो ड्रॉबैक क्या है वो आपको अभी नहीं डिस्कस करना है। तो बोर्स के मॉडल में क्या है, इट इज अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ Rutherford atomic model। बोर्स मॉडल इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ बोर्स atomic model। तो in the Bohr's atomic model, atom consists of positively charged nucleus. 1 second.